So hello friends, today we will discuss about the electric potential due to the system of charges. In the previous period, we have determined the electric potential due to the point charge, which value is found to be 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. This is the formula for electric potential due to a point charge. And again we have determined the electric potential due to an electric dipole, which value will be 1 by 4 pi epsilon 0 P by R square, okay, or P cos theta upon R square, that we have determined in the earlier period. Now today we will discuss about the electric potential due to the system of charges. Means for example, this is the charge plus Q1, this is the charge plus Q2, this is the charge plus Q3 up to the charge suppose Qn. These are the charges which are located in a space, and suppose this is the point O at which we have to determine the electric potential due to that all the charges. If suppose the distance of that charge Q1 from that point O is R1, distance of that charge Q2 from this point O is R2, this one suppose R3, up to distance of that n charge from that point O is become suppose RL. So by the definition of that electric potential, or by this electric potential due to the point charge, due to this charge Q1, distance of that charge Q1 from that point O is R1. So therefore at this point O, the electric potential due to this charge Q1 becomes V1 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1. Similarly, due to this charge Q2, V2 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 upon R2. थर्ड चार्ज कौन था अपना Q3, जिसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट O से R3, जिसके लिए पोटेंशियल आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बाय R3 अप टू nth नंबर का चार्ज क्या लिया अपन ने प्लस Qn. ड्यू टू दैट पोटेंशियल बिकम्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn बाय Rn. So due to these separate charges, the potential at this point O will be obtained, that is the V1, V2, V3 up to Vn, and therefore the total potential at this point O nothing but the algebraic sum of the potential produced by each individual charge, means V equal to V1 plus V2 plus V3 up to what Vn. But what is the value of V1? V1 की वैल्यू क्या है 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1. सभी जगह पे 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन निकल रहा है, कॉमनली लिख देते हैं यहाँ पर अपन. सो दिस बिकम्स व्हाट Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 अप टू Qn by Rn. So this is nothing but 1 by 4 pi epsilon 0 summation over I equal to 1 to n Qi by Ri. This is the total potential due to this system of charges. Means there are more than 2 or 3 charges at a point, and you have to find out the total potential. So you have to take the algebraic sum of the potential produced by each charge. Then for the uniform distribution, this summation will be get replaced by the integration. Means यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अब यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या आ रहे सेपरेटली पॉइंट चार्जेस आ रहे, लेकिन जैसा एक आधा रीजन दिया है ऑन दिस सरफेस देयर आर द चार्जेस आर गेट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रीजन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P सपोज. सो इन दिस कंडीशन वी विल टेक द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रीजन. चार्जेस ऑन विल बी सपोज dq, डिस्टेंस जो भी रहेगा R1, जो रहेगा डिस्टेंस R0 लेंगे, इसका क्या लगेगा ये जो समेशन है इसके जगह पे क्या आएगा इंटीग्रेशन. ओके, सो इन दिस वे द सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला. अगेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. That equipotential surface, that topic will be get deleted
फॉर दिस ईयर, बट फॉर नॉलेज थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उसमें का पोर्शन आपको बताता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स द सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा मिलेगा अपने को? कांस्टेंट। जैसा देखो यहाँ पर पॉइंट चार्ज अपन ने बोले थे, तो इस पॉइंट चार्ज से आर इतने डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकाले तो क्या मिला था अपना? V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। अगर R कांस्टेंट है, अगर R कैसा है? कांस्टेंट है, तो यू विल गेट दैट V ऑल्सो कांस्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज this is the point charge Q and this is the direction of electric intensity, this is the direction of electric intensity from this charge Q in all directions suppose, okay? So at distance R1, at distance R1 means ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज Q से R1 डिस्टेंस पर कोई भी साइड में, इस चार्ज Q से R1 डिस्टेंस पे कोई भी साइड में अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते तो बाय दिस फार्मूला यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट सर्कल इज कांस्टेंट और नॉट। कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो सिमिलरली अगर इस R की वैल्यू फिर से बढ़ाते अपन तो फिर से क्या होगा? इस पॉइंट पे फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते तो ये जो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा अपने को, फिर से ये स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगा अपने को? फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कैसा हो गया? ये R1 कंसीडर किया तो मैंने इसको कंसीडर किया R2, ये अगर R2 का तो ये क्या हो जाएगा? V2 होगा कि नहीं होगा? मिस हर एक जगह पे मिलने वाला पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो ऐसा जो सरफेस होता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मींस फॉर एग्जांपल, this is the point P, this is the point Q in the electric field, and you have to find out the potential difference between this point P and Q. So work done to move the charge from the point P to Q. Work done to move the unit positive charge from the point P to Q. That is called as potential difference. So this is equal to Vp minus Vq. क्या आएगा? Vp minus Vq। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर के? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर के। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ के हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर के। मींस ये एक पॉइंट समझ लो, ये P कंसीडर किया मैंने, ये पॉइंट Q कंसीडर किया। अगर इस पॉइंट P और Q के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अपन, ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मींस दिस Vp माइनस Vq इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। Vp माइनस Vq इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन बिकम्स व्हाट? 0। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स P एंड Q बिकम्स व्हाट? 0। अगेन इफ सपोज any equipotential surface will be taken here like this, मीन्स क्या होगा? अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा काय के फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। काय के फॉर्म में मिलेगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? लीनियरली, तो यू विल गेट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स लाइक दिस। सिलेंडर के फॉर्म में ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो जनरली क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds, वेक्टर E डॉट ds और E डॉट dx। ओके, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स E डॉट dx मींस कौन सा प्रोडक्ट हो गया? ये डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क 0 की होता है। जैसा मैंने ये स्फीयर है, इसमें का इतना पोर्शन कंसीडर किया, दिस वन, ये यहां ड्रॉ किया मैंने, बराबर है। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है? नॉर्मल टू दिस सरफेस। कैसी है? नॉर्मल टू दिस सरफेस। मींस ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नॉर्मल टू दिस सरफेस E। ओके, एंड वी हैव डिस्प्लेस दैट चार्ज थ्रू द डिस्टेंस dx। ये डिस्टेंस dx से क्या कर रहे हैं अपन? इस चार्ज को, कोई भी पॉइंट चार्ज लिए यहां पे अपन ने Q0 और इसको क्या किया अपन ने? डिस्टेंस dx से डिस्प्लेस किए। तो यहां पर अगर देखते हो तो ये सरफेस के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का, और ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दोनों कैसे एक में को परपेंडिकुलर है। मींस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो दिस बिकम्स व्हाट? E dx cos ऑफ थीटा। ओके, बट थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 90। मींस ये हो गया 90, तो cos 90 क्या होता है? 0। मींस वर्क डन बिकम्स व्हाट? 0। ओके, सो इन दिस वे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? एट द एवरी पॉइंट पोटेंशियल बिकम्स व्हाट? कांस्टेंट। एंड अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते अपन क्या होगा? 0। मींस देयर विल बी
no work done when the charges are moved on that equipotential surface. Okay, thank you.